Hello viewers, I am Dr. Ayasamo. I am running this YouTube channel to teach the human physiology. In this playlist, we are focusing on human digestive system. We have already discussed introduction to the gastrointestinal tract, layers of GIT, neural control, and peritoneum. In this lecture, we will be focusing today about the structure and function of the um, mouth, salivary glands, and tongue. These lectures are very useful for MBBS students of biological sciences, including pharmacy, nursing, biochemistry, zoology, freshwater biology, plant sciences, because they also take the minor classes. I am requesting you to subscribe my channel and please do not forget to hit the bell icon, because once you hit the bell icon you will receive the video when we upload our new content. And please also inform your friends to view this YouTube lectures because they are free. So our today's topic is mouth. So mouth is the opening of our face. This is the mouth. Okay, so if you look at this structure, so you will find that these two lateral sides are cheeks. First, I would like to introduce you two important concepts, because we are studying anatomy. So you should know about the what is lateral, what is anterior, posterior, and what is inferior and superior. So left and right side uh, is called lateral. The left cheek and right cheek are the lateral to each other. Anterior and posterior. Anterior means front here, posterior means backside, right? And inferior and superior, which means head is superior to the chest, and chest is inferior to the head. Similarly, our our head is superior to the our feet, and our feet are inferior to our heads. Okay, so this is the basic terms. So mouth and salivary glands and tongue, these are three important topics we will be discussing today. And when the learning objectives of this activity or this learning or this lecture is, when I end this lecture, you should be identify the locations of the salivary gland and describe the functions of their secretion, and describe the structure and function of the tongue. So these are the very important objectives of this study. So now we uh, look at the mouth. So this is mouth, right? So these are the cheeks, right? These are the cheeks, and these are the lips, the upper lip, this is the lower lip, this is tongue, these are the tonsils, these are the soft plate, and anterior to the soft plate there is a hard plate. So mouth is also called oral cavity, or we call it buccal cavity. And mouth is mainly formed by the cheeks, soft plate, hard plate, and and the tongue. These together they form the mouth. So externally, these cheeks that I showed you, these cheeks are composed, covered by the skin. Externally they are covered by the skin, and internally they are covered by, you can see here, this the mucous membrane. So this mucous membrane, this is the external skin, and this is the mucous membrane. So this mucous membrane is composed of non-keratinized stratified squamous epithelium. So if you do not know about the non-keratinized stratified squamous epithelium, you can go back and watch my video about the introduction to GIT layers. You will know what is the epithelium, what is stratified epithelium, what is columnar epithelium, and what is squamous epithelium. Okay, so the
cheeks are covered by first the skin and then the mucous membrane. So water cannot go outside the skin, and mucous membrane secretes water. Why? Because skin is protective to the water, because our water should not go outside the skin, because once our water go outside the skin it will be dry, ये dry हो जाएगी. और ये जो माउथ में जो म्यूकस है ये वाटर सीक्रेट करता है. ये क्यों सीक्रेट करता है? ताकि हम जो खाना खाते हैं उसे एक मॉइस्चर मिले या लिक्विड मिले, ताकि वो जो है उसका बोलस बन सके और हमें हजम जो फूड जो है उसको हजम होने में आसानी हो. तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. तो इस जो स्किन और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसके बीच में एक मसल होती है जिसे हम कहते हैं ब्यूकिटेनर मसल, राइट. और ये जो लिप्स हैं इन लिप्स को हम जो है वो हम लेबिया भी कहते हैं. तो लेबिया जो है लिप्स को हम द सेकंड नेम ऑफ द लिप्स इज कॉल्ड लेबिया, राइट. तो लेबिया जो है जो स्किन जो है हमारे चीक्स जो हैं उनके और उनकी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के बीच में जो मसल होती है उसे हम कहते हैं ब्यूकिटेनर मसल, ओके. और लिप्स की स्किन और लिप्स के म्यूकस मेम्ब्रेन में जो मसल होती है उसे हम कहते हैं आर्बिकुलरिस ओरिस मसल, आर्बिकुलरिस ओरिस मसल. तो आर्बिकुलरिस ओरिस मसल जो है उसका काम क्या होता है कि वो जो है वो लिप को जो है वो मूव कराने में हेल्प करती है. तो इनर सरफेस जो है वो उससे अटैच होती है, और जब हम कोई फूड च्यू करते हैं तो ब्यूकिटेनर मसल और ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल आपस में कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और कंट्रैक्शन जो उनमें होती है वो क्या करती है कि फूड को जो है वो माउथ में होल्ड करती है, राइट. तो ये तो हो गया इसका. और एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है स्पेस बिटवीन द जो है वो बिटवीन चीक्स लिप्स एंड गम्स उसे हम कहते हैं ओरल वेस्टिबल. तो ये जो है स्ट्रक्चर उसे हम ओरल वेस्टिबल कहते हैं. अगर आप गौर से देखें तो हाँ यहाँ पर क्लियर नहीं है. यहाँ पर जो है हमारे लिप्स जो हैं वो लोअर लिप और अपर लिप, जब आप खोलकर अगर आईने पे खड़े होंगे तो आपको एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसे हम इंफीरियर लेबियल फर्न्यूलम कहते हैं. तो इंफीरियर लेबियल फर्न्यूलम, इसको इंफीरियर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोअर लिप में है. और इसको हम सुपीरियर लेबियल फर्न्यूलम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपर लिप में है. तो ये अपर लिप को जो है वो गम के साथ ज्वाइंट करती है ये मसल, और ये जो इंफीरियर लेबियल फर्नम है ये लोअर लिप को गम के साथ ये ज्वाइंट करती है. तो इससे इन दोनों का फंक्शन आपको समझ में आ गया. अब हम आते हैं, अगर आप जुबान को थोड़ा ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, और इस स्ट्रक्चर का काम है कि जो है ये जो हमारी जुबान है उस जुबान को पीछे की तरफ अटैच करता है ताकि उसको जो है वो मूव करने में आसानी हो. तो ये तो हो गया. अब ये तो हो गया लिंगुइनल फर्न्यूलम के बारे में. ये जो है इसको हम कहते हैं लिंगुइनल फर्न्यूलम. अब जो है ये लिंगुइनल फर्न्यूलम भी हो गया. इंफीरियर लेबियल फर्न्यूलम अटैच इंफीरियर लिप टू द गम, जो हमारा लोअर लिप है उसको गम के साथ अटैच करता है. और सुपीरियर लेबियल फर्न्यूलम का काम क्या है? जो है वो हमारे अपर लिप को गम के साथ अटैच करता है. और लिंगुइनल फर्न्यूलम क्या है? जो है वो हमारी टंग की मूवमेंट को कंट्रोल करता है पोस्टीरियरली. अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर हैं. एक को कहते हैं यूविला, एक को कहते हैं सॉफ्ट प्लेट, एक को कहते हैं हार्ड प्लेट. ये जो हार्ड प्लेट है ये दांतों को से थोड़ा आगे जो है, अब अगर आप जुबान को ही अपनी को मूव करेंगे तो वहां पर आपको एक स्ट्रक्चर जो लगेगा वो थोड़ा हार्ड सा लगेगा. और उस जुबान को अगर थोड़ा आप और आगे की तरफ मूव करें तो एक सॉफ्ट सी स्ट्रक्चर आपको फील होगा. तो उसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं.
और आगे वाले को हार्ड पैलेट कहते हैं। और उसके बाद जो आपको जो ये यू शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, आर्च शेप नजर आ रहा है, ये जो है ये क्या है, यूव्युला। तो हार्ड पैलेट जो है ये माउथ का जो एंटीरियर पोर्शन है उसको बनाती है, और ये जो है इसमें दो बोन्स की बनी होती है। एक बोन को कहते हैं मैक्सिला बोन और दूसरे को कहते हैं पैलेंटाइन बोन, राइट। और इसको जो है ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके साथ कवर होती है। और हमारी जो सॉफ्ट प्लेट होती है वो उससे थोड़ा पीछे की तरफ होती है। इसे हम क्यों कहते हैं, एंटीरियर मीन्स आगे की तरफ और पोस्टीरियर मीन्स पीछे की तरफ। तो सॉफ्ट प्लेट जो है इसमें बोन्स नहीं होते। और ये जो हमारा ओरोफेरेंक्स है और नेजोफेरेंक्स है उसके उसके बिल्कुल करीब होती है, यहाँ बीच में होती है। और ये जो है वो इसके ऊपर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ताकि म्यूकस ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट हो। और म्यूकस क्यों सीक्रेट होता है, ताकि जो फूड है हमारा उसकी एंट्री जो है वो आसानी से हो सके और उसका बोलस बन सके, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। और यूव्युला जो है बेसिकली इसका काम क्या है कि ये सॉफ्ट प्लेट के करीब होता है यूव्युला। और ये जब इसका फंक्शन बेसिकली होता है कि ये जब हम खाना खाते हैं तो खाने के वक्त जो है वो इसको जो है स्वेलिंग के दौरान ये बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि जो खाना जो है वो हमारे नेजोफेरेंक्स में ना चला जाए, और नेजोफेरेंक्स में अगर खाना चला गया तो हमें सांस लेने में दुश्वारी होगी या तकलीफ होगी, राइट। तो ये इसका काम है। और यूल्वा के दो स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम जो है वो यहाँ पर देखने में आ रहा है। पैलेंटाइन टॉन्सिल्स जो हैं, और पैलेटोफेरेंजियल आर्च जो है, और लेजोफेरेंजियल आर्च। इन आर्च का काम क्या है कि ये जो है वो मॉइस्चर पहुंचाती है या इनको मूवमेंट करने में मदद करती है, ये मस्कुलर। और आर्च जो है वो ये जो हमारा फॉइसेस जो है, फॉइसेस ये जो है ओरल कैविटी को ओरोफेरिंग्स में हेल्प जो है मूव कराने में काम आता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द माउथ। अपर लिप, लोअर लिप, दे आर कनेक्टेड बाय इंफीरियर लेबल फ्रेनलम और सुपीरियर फ्रेनल लेबलम। और टंग जो है वो जिस लोब के साथ अटैच होती है उसे हम लिंगुअल फ्रेनल कहते हैं। और जो ये जो आर्च हैं ये जो है वो इनको मूव कराने में हेल्प करती हैं। माउथ में हार्ड प्लेट होती है, पैलेट होती है और सॉफ्ट पैलेट होती है। और यूल्वा जो है वो सॉलिड फूड को जो है वो नेजल कैविटी में इंटर होने से ब्लॉक करता है, इसलिए वो बंद हो जाता है। तो ये तो हो गया माउथ की जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन। माउथ को अगर आप थोड़ा और गौर से देखेंगे तो माउथ में जो है वो सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो सिलेवरी ग्लैंड्स, मेजर सिलेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो तीन होते हैं। एक को कहते हैं हम पैरोडिट सिलेवरी ग्लैंड, दूसरे को हम कहते हैं सबमैंडिबुलर सिलेवरी ग्लैंड, और तीसरे को हम कहते हैं सिलेवरी सबलिंगुइनल सिलेवरी ग्लैंड। तो 25% ऑफ सिलेविया जो है हमारा आता है पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड से, और 70% अपना सिलेविया का जो है हमारा आता है सबमैंडिबुलर सिलेवरी ग्लैंड से, और सबलिंगुइनल ग्लैंड से 5% आता है। इन एडिशन टू दीज थ्री ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुइनल ग्लैंड, there are other minor glands which are also located in our mouth. They are called labial gland जो हमारे lips में होते हैं, buccal glands जो हमारे cheek में होते हैं, और linguinal gland जो हमारे tongue में होते हैं, और palatal gland जो है हमारे पैलेट्स में होते हैं। तो पैलेटल ग्लैंड जो है वो हमारे पैलेट्स में होते हैं। तो ये भी जो है वो बहुत कम या थोड़ी मिकदार में म्यूकस सीक्रेट करते रहते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मॉइस्चर टू द फूड। तो ये सिलेवरी ग्लैंड्स है, ये इनका बेसिक फंक्शन क्या है, सिलेविया को सीक्रेट करना। तो यहाँ पर हमारा जिक्र आया सबमैंडिबुलर सिलेवरी ग्लैंड का या पैरोटिड ग्लैंड का। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो वहां पर अगर जो है वो कोई प्रॉब्लम हो जाए, या वो होता है कान के नीचे, तो उसकी एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसको हम मम्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये मम्स जो हैं वो एक किस्म का इन्फ्लेमेशन है
अगर पैरोटिड ग्लैंड में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो मॉडरेट फीवर भी हो जाता है और डिस्कम्फर्ट महसूस होता है और थ्रोट में पेन भी हो जाता है। और ये जो है अक्सर इस क्यों होता है, क्योंकि हम जो है खट्टे या एसिडिक फूड्स खाते हैं, इसलिए हो जाता है। और स्वेलिंग जो है वो एक साइड भी हो सकती है और दूसरी साइड भी हो सकती है। और ये तकरीबन जो है ये कुछ जो है रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मलिटीज भी इससे हो सकती हैं और स्टेरिलिटी के इश्यूज होते हैं। लेकिन ये इतना खतरनाक मर्ज नहीं है मम्स, क्योंकि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। और वैक्सीन अगर आप करवाएं तो मम्स जो है वो आपको कभी भी नहीं होगी। और इसकी 1967 में वैक्सीन इन्वेंट हो चुकी है। तो ये मम्स का हो गया। और सिलेवरी ग्लैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलेविया सीक्रेट करते हैं, तो सिलेविया जो है वो बेसिकली ये सारे मिलके जो है वो 1000 ऑन एवरेज 1000 से 1500 ml सीक्रेट करते हैं। और इनकी जो है वो पीएच जो है सिलेविया की वो 6.35 और 6.85 है। और 7 तो न्यूट्रल होती है और 7 से अबो तो अल्कलाइन हो जाती है। क्योंकि ये 6 है तो इसलिए ये एसिडिक है। तो सिलेविया की कंपोजिशन अगर हम देखें तो 99.5% जो है वो 99.99% जो है ऐसा कर ले, ये जो है सिलेविया में वाटर होता है और म्यूकस होता है। और म्यूकस का काम क्या है, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है फूड को, तब फूड में जो है वो मॉइस्चर हो। और इसमें सिलेवरी अमाइलेज होते हैं और सिलेवरी अमाइलेज जो हैं वो क्या करते हैं, हमारा जो स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उनको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और लिंगुइनल लाइपेज जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उनको सिंपल फैट्स में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें सोडियम होता है, जिसमें क्लोरीन होता है, जिसमें पोटेशियम होता है और जिसमें बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। कोई आप में से कोई बताएगा कि इसमें क्लोरीन क्यों होता है और इसमें बाइकार्बोनेट आयन क्यों होते हैं? अच्छा, नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक और होता है लाइसोजाइम, जो है लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करता है। और IgA जो है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है, वो दूसरे माइक्रोब्स को किल करता है। तो हमारे सिलेविया में की केमिकल कंपोजिशन ये है। और केमिकल कंपोजिशन में जो डिफरेंट केमिकल्स हैं उनके जो फंक्शन ये है। क्लोरीन जो है वो आयन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इसलिए होता है because chlorine is required to activate the salivary amylase, which is required for the breakdown of the starch into the maltose. दूसरा जो है वो बाइकार्बोनेट आयन क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है कि हम जो फूड खाते हैं वो फूड हो सकता है एसिडिक हो। और एसिडिक होने की वजह से उसे हमें उसकी एसिडिटी थोड़ी कम करने के लिए हमें बाइकार्बोनेट आयन चाहिए। तो वो ताकि उसको हम इंजेस्ट कर सके। तो जब ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो हमारा मुंह जल सकता है। तो इसलिए हमें बाइकार्बोनेट आयन की जरूरत होती है टू एक्ट एज अ बफर। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है टंग। अब इस टंग का जो है वो अगर आप क्लोजली जायजा लें तो ये लेफ्ट साइड पे जो है वो एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर देखने में आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं प्लेटोग्लोसस मसल, इसको हम कहते हैं स्टाइलोग्लोसस मसल, इसको हम कहते हैं हायोग्लोसस मसल और इसको हम कहते हैं जीनियोग्लोसल मसल। ठीक है। और जो इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं वो इंट्रिंसिक मसल्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने में आ रही है। इसको मसल्स को कहते हैं हम सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इससे हम कहते हैं वर्टिकल, इस मसल को हम कहते हैं ट्रांसवर्स मसल और इस मसल को हम कहते हैं इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल और ये जो बीच में है इसे हम कहते हैं सेप्टम मसल। तो एक्सट्रिंसिक जो मसल्स होती हैं हमारी, बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये टंग को जो है वो इस साइड से इस साइड मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट जो है टंग की माउथ में वो करते हैं। प्लस में ये जो है एक्सट्रिंसिक मसल वो फूड को च्यूइंग करना और फूड का जो है बोलस बनाना उसके लिए भी काम आती है। और जो इंट्रिंसिक मसल होती है उसका काम क्या होता है, वो एक तो ज़बान को शेप प्रोवाइड करती है, दूसरा हमारी जो स्पीच है
जो हम जब बात करते हैं तो उस बात करने की फैसिलिटेशन भी ये इंट्रिंसिक मसल करती हैं। प्लस में इंट्रिंसिक मसल का अगर आप थोड़ा इनलार्ज व्यू देखेंगे तो उसमें होगा पेल्पिलाय होगा, और पेल्पिलाय बेसिकली क्या आते हैं, ये छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जिनमें रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जो हम जब फूड खाते हैं तो उन फूड का जो टेस्ट है वो हमें देते हैं, क्योंकि वो कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं पेल्पिलाय में। और प्लस में टंग में हमारा जो है वो लिंग्विनल ग्लैंड भी होता है, और लिंग्विनल ग्लैंड का जो टंग का जो टिश्यू होता है लेमिना प्रोप्रिया, क्योंकि म्यूकस जो है उसमें 3 तरह के टिश्यू होते हैं। एक तो है एपिथेलियम होता है, सब म्यूकोजा होता है, एपिथेलियम होता है, लेमिना प्रोप्रिया होता है और मस्कुलरस होता है। तो टंग की जो लेमिना प्रोप्रिया है उसमें जो है लिंग्विनल ग्लैंड होते हैं, जो लिंग्विनल ग्लैंड क्या करते हैं, लिंग्विनल लाइपेज सीक्रेट करते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड को जो है फैट में, और ऑयल जो होते हैं उनको सिंपलर फैटी एसिड में या डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो टंग का एक्सटर्नल मसल्स के फंक्शन भी आपको आ गए, टंग के इंट्रिंसिक मसल के फंक्शन भी आपके आ गए। एक्सट्रिंसिक मसल के फंक्शन क्या है, ज़ुबान की जो है वो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कराना, या फिर जो है वो बोलस फूड का जो है उसमें काम आना। इंट्रिंसिक मसल हमें स्पीच में हेल्प करती हैं, और प्लस में जो है वो जो है इनमें पेल्पिलाए भी होते हैं जो टेस्ट बर्ड्स या क्रस्टेशन में के काम में हमें हेल्प करते हैं। तो ये तो बेसिकली जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। और स्लेवेशन का जो प्रोसेस है बेसिकली ये कंट्रोल होता है, जो है वो इनको कंट्रोल करता है बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम। अब हमारी बॉडी का जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो स्लेविया की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, और जो सिंपैथेटिक होता है नर्व सिस्टम, वो हमारी स्लेविया की प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि उसको सिग्नल्स मिलते हैं, फूड की स्मेल अगर आपको आए तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, फूड के थॉट्स जो हैं वो आए हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, फूड को टेस्ट अगर जो आपका अगर आप टेस्ट करते हैं तो फिर भी आपके मुंह में पानी आ जाता है। क्यों, क्योंकि आपका पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। लेकिन सिंपैथेटिक में क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारी स्लेविया की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमें स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस के नतीजे में जो है वो ड्राइनेस हो जाती है माउथ की, और माउथ जब ड्राई हो जाता है तो स्लेविया जो है वो सीक्रेट नहीं होती है, और स्लेविया सीक्रेट ना होने की वजह से हमारा वाटर जो है वो थोड़ा कंजर्व हो जाता है, थोड़ा बच जाता है, और मुंह हमारा ड्राई हो जाता है। और ये जो ड्राइनेस जो आती है मुंह में, इसकी वजह से थर्स्ट की एक सेंसेशन पैदा हो जाती है, जो हमें मजबूर करती है कि हम वाटर का इनटेक करें और वाटर ले लें। और वाटर जब हम लेते हैं तो हमारा एक तो होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन हो जाता है, और हमारा माउथ जो है वो उसके म्यूकस में अगेन जो है वो वाटर जो है वो सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, और फिर माउथ जो है मॉइस्चर हो जाता है। आपको उम्मीद है कि ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपको माउथ के स्ट्रक्चर्स, स्लेवरी ग्लैंड्स क्या है, स्लेवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, स्लेविया का जो है वो कंपोजिशन क्या है, उसकी पीएच क्या है, वो कितनी सीक्रेट होती है, टंग क्या है, टंग के एक्सटर्नल मसल और इंट्रिंसिक मसल में क्या फ़र्क होता है, उनकी क्या है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आ गया है तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और हमारे इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो रेफरेंसेस हैं वो हमने गूगल से, विकीपीडिया, हेल्थलाइन और पबमेड और यूट्यूब से लिए हैं, और हमने रेफ़र किया था जेराल्ड जी टाटोला का फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, और हमारी जो बुक रेफ़र एक और की थी वो मेडिकल हेल्थ थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो आपका बहुत शुक्रिया होगा, और आगे चल के आपको हमारी नई वीडियो मिलेगी।